ایک دین ہوتا ہے جس کو ہم مذہب کہتے ہیں. مذہب اسلام کو دین اسلام کہا جاتا ہے. تو وہ دن ہوتا ہے الگ ہوتا ہے جس میں سورج نکلتا ہے، اور یہ دین ہوتا ہے جو مذہب ہے. اس کو بھی دین اس لیے کہا گیا کہ جس طرح دن کو سورج نکلتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور انسان کو کونا کونا نظر آتا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کدھر گڈھا ہے کدھر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسے نظر آتی ہے. اسی طرح مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے جب اس کے اندر مکمل طریقے سے کوئی آ جاتا ہے نا تو اسے ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کدھر ہمیں چلنا چاہیے کدھر نہیں چلنا چاہیے. حضرات محترم و معزز سامعین، آج آپ کے دیار محبت میں ملت کا درد لے کر یہ نوجوان حاضر ہیں. یہ میرا اکیلا دم خم نہیں ہے، نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جاگی اور اس راستے پر قدم بڑھانا چاہا جب جوانوں نے، تو انہیں ضرورت تھی ایک رہبر کی کہ کس ڈھنگ سے ہم چلیں. تو انہوں نے ہمیں چنا، ہمیں بلایا. اب جب بلایا تو مجھے بہترین ہم سفر ملا، اسی لیے ہم آگے بڑھے. آپ بھی اگر آگے بڑھے نا تو دھیرے دھیرے ایک بہت بڑی جماعت ہو جائے گی، اور یہ جماعت ہی اسلام پور کے سارے رنگ ڈھنگ جو اب تک بن چکے ہیں سب کو تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہوگی. حضرات محترم معزز سامعین، جس کے اندر بھی ایمان ہوگا نا وہ برائی کو دیکھ کر کہے گا یہ برائی ہے، اچھا نہیں ہے. وہ کچھ کر سکے یا نہ سکے لیکن دل میں تو برا جانے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے اول درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھو اسے روک دو، اس کے خلاف کھڑے ہو کر روکو. اگر تم اس کو روک نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، تو کم سے کم بول کر کے، پیار سے بول کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرو. اگر دیکھ رہے ہو کہ تمہیں سمجھانے میں بھی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہو جائے گی، معاملہ بڑھ جائے گا، ہم سنبھال نہیں پائیں گے، تو کم سے کم دل میں بھی برا جانو. یہ دل میں برا جانو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان دل میں بھی برا نہ جانے تو ایمان اس کا ختم ہے. ایک پہچان ہے کہ دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا، برا کو برا نہیں سمجھ رہا ہے. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اس تعلق سے دو چار باتیں کروں. میں نے ایک حدیث پڑھی، آج اس حدیث کا ماصل بیان کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کی 70 ڈالی ہے. یہ گاچھ ہے نا، درخت جس کی کئی ڈال ہے، دیکھیں بہت سارے ڈال ہے نا، اسی طرح ایمان ایک درخت ہے جس کے 70 ڈال ہیں، 70 یا اس سے بھی زیادہ ڈال ہیں. اور ان 70 ڈالوں میں سب سے بڑا ڈال جو ہے نا اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا، کلمہ طیبہ کا پڑھنا. اے مسلمانوں، اب میں یہاں سے شروع ہونا چاہوں گا. آج آپ کے دیار محبت میں آنے کی ضرورت ہمیں اور آپ کے امام صاحب کو کیوں پڑی؟ صرف اس لیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو، ہم اپنے ایمان میں کہاں سے کہاں تک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان سب سے بڑی ڈالی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور سب سے چھوٹی ڈالی کا نام ہے
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کہیں شیشہ کا ٹکڑا پڑا ہے، کہیں پریک پڑا ہے، کہیں گوبر پڑا ہے، کہیں پخانا پڑا ہے، اور اس راستے سے کوئی بھی انسان گزرے گا جس کو تکلیف ہوگی، جس کو چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، کانچ سے اس کا پیر کٹ سکتا ہے، گوبر سے اس کے کپڑے آلود ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان کی چھوٹی ڈالی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم نے اس ڈالی کو بھی دھیان نہیں دیا، اور ان دونوں ڈالی کے بیچ میں ایک ڈالی ہے، بڑی ڈالی لا الہ الا اللہ، سب سے چھوٹی ڈالی راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، اور بیچ کی ایک ڈالی ہے جس کا نام ہے شرم کرنا، حیا کرنا، کیونکہ حیا بھی ایمان کی ایک ڈال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح معاشرہ میں یہ پوری حدیث پاک فٹنگ آتی ہے کہ آج اصلاح معاشرہ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ نے جو قیمتی سامان ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بچانا ہے۔ اس دور پر فتن میں ہم اتنے خطرناک کفر، شرک اور گناہوں کے سمندر میں گھر چکے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس طرح ہتھیلی پر انگارہ رکھنا تکلیف دہ ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا اپنے ایمان کو بچانا۔ ایمان ہی ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے گی، ایمان ہی ہے جو اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا آپ کو یہ ایمان دلائے گی۔ حضرات محترم، لیکن ہم نے ایمان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کون سا دھیان ہے بتائے؟ حدیث میں کہا گیا کہ سب سے بڑی ڈالی کا نام لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پڑھا، رات کو سوتے ہیں کلمہ پڑھا، صبح کو اٹھتے ہیں کلمہ پڑھا، دن بھر گزارا کرتے ہیں کلمہ پڑھا۔ ہم تو اتنے گر چکے ہیں نا کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لینا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو بسم اللہ نہیں کہہ کے کھاتے ہیں۔ ہم اللہ کو اتنے بھول چکے ہیں، کلمہ پڑھنا دور کی بات، جہاں کلمے کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں پر اپنے زندگی کا معائنہ لے۔ اس وقت ہم اپنے موبائل جو 30,000 40,000 کی قیمت کی ایک موبائل کو ہم نے خریدا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے، ہیڈ فون کے ذریعے سے گانا سنتے ہیں، غیر محرم سے ہم چیٹنگ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں جب تک ہماری نیندیں نہیں آتی۔ کون سی رات ہے؟ دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ نوجوانوں، ہماری کون سی رات ہے جس رات میں ہم نے اللہ کا نام لے کر نیند حاصل کی؟ یہ حال فی الحال کی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ 5 سال 10 سال کے اندر میں جب سے آپ حضرات کے ہاتھوں میں موبائل آیا ہے، جب آپ سونے جاتے ہو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ موبائل دیکھتے دیکھتے تم کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہو؟ کیا جب تمہیں نیند آتی ہے اللہ کا نام لے کر سوتے ہو؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہو تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم نے اپنے اندر دیکھا جھانک کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ایمان کی بڑی ڈالی ختم ہوئی کہ نہیں؟ ایمان کی بڑی ڈالی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کی چھوٹی ڈالی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کیوں ہٹانا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دوسرے مسلمان کو گزند نہ پہنچے، دوسرا مسلمان بھائی ٹھوکر کھا کے نہ گرے۔
اسی لیے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ تمہیں بھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، اور تمہارے علاوہ دوسرے کو بھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہوگا جو مذہب اسلام کو مار کر کاٹ کر ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب وہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں تمہیں جینے کا حق ہے وہاں غیروں کو بھی جینے کا حق ہے۔ یعنی جب تم راستے سے چلو، ٹھوکر لگنے والے سامان کو، بریک ہو، کانچ کا ٹکڑا ہو، ان سارے سامانوں کو وہاں سے ہٹا دو۔ کیا خبر تمہارے بعد تمہارے مسلمان بھائی ہو یا کوئی غیر بھی ہو، انسان جب بھی گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ میرا مذہب اسلام ہے، لیکن ہم نے کیا ایسا؟ اب جائزہ لے، جھانکے، نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بغل میں ہم دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، کیسے اس کو تکلیف پہنچایا جائے، کیسے وہ زمین چھوڑ کر بھاگے، کیسے یہ زمین مجھے حاصل ہو جائے، کرتے ہیں نا؟ تو آپ بتائیں، آپ ایمان کے کس حصے میں ہیں؟ آپ ایمان کے کس راستے پر ہے؟ ہمارا روز کا یہ تکیہ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ماں اور بہنیں بھی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھیے نا، ہمارے بیٹے کو کسی نے کچھ کر دیا ہے کیا؟ فائل نامہ کھول کر دیکھیے۔ اب فائل نامہ کھول کے دیکھنے کے بعد ابھی دیکھا نہیں ہے، اس سے پہلے عورتیں کہتی ہے مجھے شک ہے میرے گھر کے بغل میں جو رہتی ہے نا اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ اتنا دماغ میں غلط ہم نے پال لیا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے یہ مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ دوسرے مسلمان تو دور کی بات، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، امام الحمام، اماموں کے امام، نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، پوری کائنات میں جتنے حنفی ہیں سبوں کے امام۔ ان کے گھر میں ایک موچی رہا کرتا تھا، آپ نے سنا امام صاحب سے واقعہ، یہ بہت مشہور واقعہ۔ موچی رہا کرتا تھا، ذات کا موچی، ذات کا موچی رہا کرتا تھا۔ یہ آتے اور ٹھیک جب عشاء کی نماز کے بعد یہ کھانا وانا کھا کر نفل نماز میں کھڑے ہوتے نا، اسے معلوم تھا کہ امام اعظم ابھی نماز پڑھے گا، اب وہ گانا باجا شروع کر دیتا، گانا باجا شروع کر دیتا، رقص کی محفلیں سجاتا، شراب پیتا، ادھم مچاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہر طریقے سے انہوں نے اپنے روم کو بند کر رکھا تھا کہیں ہم کو تکلیف نہ پہنچے۔ غور کیجئے گا، امام اسلام کی تبلیغ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح کا روز کا حال دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس انسان کو وہاں کی پولیس پکڑ کر لے گئی، اس نے بہت غلط کام کیا تھا۔ اب رات کو جب امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آواز نہیں آتی۔ اب فکر لاحق ہوئی کہ میرا پڑوسی تھا، گیا کہاں؟ آپ کو فکر ہوتی ہے؟ اپنے بھائی کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں کھایا کہ نہیں، اپنے بہن کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کیسی ہے۔ وہ امام اعظم جن کو فکر ہوئی کہ میرا پڑوسی ہے، اگرچہ دوسرے مذہب کا ہے لیکن پڑوسی تو ہے میرا۔ اب دروازہ کھول کے دیکھا کہ دروازے میں ان کے تالا لٹک رہا ہے۔ پوچھا تو کہ آپ کو معلوم نہیں کہ صبح کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے اس کو؟ اچھا یہ بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھانے تک پہنچے، اور جیسے تھانے میں پہنچے تو بادشاہ کے حکام، بادشاہ کے پولیس، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام، سارے پولیس تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور آپ یہاں کیوں؟ بلے میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ایک پڑوسی کو پکڑ کر تھانے میں لوک اپ میں ڈال دیا ہے۔ تو حضور آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ بول کر بھیجتے تو چھوڑ دیتے۔ غور کیجئے گا،
आप सिर्फ बोल कर भेजते ना तो हम छोड़ देते हैं। बोले नहीं, ये मेरा पड़ोसी है, खाली बोलने नहीं, आने की जरूरत है कि पड़ोसी के मुसीबत में उसी के साथ खड़े रहो। ये मेरा इमाम कहता है, इमाम आजम अबू हनीफा। जब पुलिस ने ये बात सुनी, फौरन उस मोची को छोड़ दिया। अब इमाम आजम अबू हनीफा आगे आगे, मोची पीछे पीछे शर्मिंदा है कि मैंने जिस इंसान को लगातार परेशान किया, आज वो मेरी भलाई के खातिर थाने तक पहुंचा है, मेरी भलाई चाहता है। थाने से निकलने के बाद ये गुलाम, ये मोची जो है ना, आगे बढ़ा, इमाम आजम अबू हनीफा के कदमों में गिर गया। बोले हुजूर, मैंने हमेशा आपका बुरा चाहा, लेकिन आपने मेरे लिए इतना भला किया, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आया? तो इमाम आजम अबू हनीफा का जवाब सुने, कहते हैं कि हम इस दुनिया में अपने लिए नहीं जीते, रसूल पाक के लिए जीते हैं, अपने नबी के लिए जीते हैं, अपने आका के लिए जीते हैं। मेरे आका का फरमान है कि पड़ोसी के साथ भलाई करो, तो हम अपने आका के हुक्म के मुताबिक मैंने तेरे साथ भलाई की है। जब इसने ये सुनी ना तो फौरन कहा, हुजूर, जिस आका का गुलाम इतना अच्छा हो, उसका आका कितना अच्छा होगा, उसका आका कितना अच्छा होगा। हुजूर फौरन मुझे कलमा पढ़ाए, इस्लाम कबूल कराए। ये है मजहब इस्लाम। लेकिन आज हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने पर, जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी के घर में शादी हो जाए, अब मेरे घर में शादी है, फौरन शादी अभी लगन लगाई नहीं, घर का उचक्का वो नौजवान गया और साउंड सिस्टम के साथ बात करा, जो फुल साउंड में बजे, और इतना बजे कि पूरे मोहल्ले में तहलका मचाए। कहा किसी के घर शादी हो रही है, प्यारे, आप अपनी खुशी के लिए आपने ये बाजे का इस्तेमाल किया, जिसमें गंदे गंदे गाने भी बजते हैं, इस्तेमाल किया। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि उस गाने की वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती है। बताए तो हाथ उठाकर किसको किसको तकलीफ नहीं होती है? अरे होती है तकलीफ। अब बताए किसको किसको तकलीफ होती है? हम यहाँ चाहिए, आप लोग को तकलीफ नहीं होती है? जो अगर तकलीफ होती है तो हाथ उठाए, हाथ उठाए। तकलीफ होती है क्या? अब आप सुने, जहां देर रात तक आप बाजा वगैरह बजाते हैं ना, जब दूसरे को तकलीफ होती है, आप कुछ नहीं कहते, बगल वाला कुछ नहीं कहता, सिर्फ इस बात पर तनाव होता है कि ठीक है, आज तेरा बेटा है, तू शादी करा रहा है ना, कल मेरी बेटी भी जवान होगी, बेटी नहीं होगी ना, बेटा नहीं होगा, तो घर में बच्ची है, खीर खिलाई का प्रोग्राम कर दो, खतने का प्रोग्राम कर दो, और वो भी नहीं तो साल में एक मर्तबा जन्मदिन तो आता ही है, उसी में कर दो। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। तुमने बजाकर मेरी रात हराम की है, हम भी बजाकर तेरी रात हराम करेंगे। ऐसे मजहब ठीक होगा? ऐसे मजहब चलेगा क्या? आपके अंदर इतनी बुराई नहीं कि आज इस बुराई को खत्म किया जाए? चाहते हो कि नहीं कि बुराई खत्म हो? आपके बगल में रहने वाला इंसान कोई हार्ट का मरीज है, कोई बुखार से तड़प रहा होगा, किसी को रात को नींद बहुत जरूरी होगी, परेशान होगा। अगर आपके कुछ अमल से मुसलमान को परेशानी, वो अमल सबसे बड़ा गुनाह है। मैं एक मसले की बात बता दूं, ये जो तकरीर कर रहा हूं ना मैं, अब ये तकरीर करते करते रात 2 बजे तकरीर हो रही है और बगल में एक मुसलमान बेचारा सो रहा, उसको परेशानी हो रही, तो वो तकरीर करना भी नाजायज है। अगर किसी को फतवा लेना है तो ले जा करके, मैं खुल के कहता हूं। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, उसके नींद में खलल हो, ऐसा काम मुसलमान के लिए गुनाह है, अजीम है। चे जाए कि आप तो वहां बॉक्स भी बजा रहे हैं,
गाना तो अलग बजा रहे हैं, उसमें फिर पूर्णिया वाला गाना वो तो अलग बजा रहे हैं आप। इतने गंदे गंदे गाने। वो सास भी एक साथ है, बहू भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, भैंसुर भी है, जड़ दामाद भी है, सारा एक साथ है और गंदा गाना बज रहा है। अब यही गंदा गाना बेचारा मौलवी अगर माइक में कह दे कि तुम ये गाना बजा रहे थे, तो मौलवी के ऊपर फतवा हो जाएगा कि मौलवी साहब गाना गा रहे हैं। नकले कुफ्र कुफ्र नावासद। आपके अंदर की शर्म कहां गई? आपके अंदर की हया कहां गई? जो बातें मियां बीवी तक महदूद रहनी चाहिए थी, वो बातें तुम्हारे सामने तुम्हारा दामाद सुन रहा है, तुम्हारी बेटी सुन रही है और धड़ल्ले से चल रहा है। यहां तक आज बात पहुंच गई कि मां बेटे के साथ नाच रही है। आप देखें सोशल मीडिया में बाजाबता अपलोड किया जा रहा है। बेटा जवान है, मां भी जवान है, ऐसे उम्र की औरतें तो आपको मिलेगी, और ऐसे गाने पे डांस करता है जहां पर महबूब और महबूबा डांस किया करती है। बताओ तुम अपनी मां के साथ ये किस रिश्ते के साथ डांस कर रहे हो? और ये हवा भी इधर आने वाली है अगर आप ना संभले। सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है ये गाने का, जो हमारे अंदर से हया नाम की चीजें उड़ गई, शर्म नाम की चीजें खत्म हो गई। हमें शर्म नहीं आती, हमें हया नहीं आती। ईमान की बीच वाली डाली भी खत्म। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को नहीं हटाया। हमने दूसरा का बुरा चाहा हमेशा, वो कैसे डूब जाए, वो जैसे बर्बाद हो जाए। हमारे ऊपर उसने जादू कर दिया है। मौलाना साहब आप पलटा जादू कर दे, वो जैसे डूबे बर्बाद हो, हम नाखून बजाए। ये तो आपकी सोच है। तो हमने कहीं भी मुसलमान का भला नहीं चाहा। हमारे अंदर से शर्म खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ईमान की 3 डाली है। बड़ी डाली का नाम ईमान की 70 डाली है। उसी 70 डाली में बड़ी डाली जो है वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह, छोटी डाली इमाततुल अज़ानी तरीक, और बीच वाली डाली का नाम हया है। हया। अब वो 70 डाली कहाँ गई? बोले इसी 3 डाली में सारी डालियां लगी हुई है। जो ये दरख्त है ना, इसमें मोटी मोटी जो डालियां है ना वो 5 से 7 होगी, छोटी छोटी बहुत सारी डालियां है ना। उसी तरीके से इस्लाम ईमान के अंदर में 3 मुख्य डालियां हैं और उन डालियों में सारी छोटी छोटी डालियां जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमारे अंदर से ये सारी बातें खत्म। ईमान का दरख्त नाड़ा हो चुका है। छांव कहां से मिलेगा आपको? आराम कहां से मिलेगा आपको? ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ऐ मुसलमानों, वक्त है अब भी हम सुधर जाएं। आज आपके दयारे मोहब्बत में हम और सारे नौजवान जो दस्तक दे रहे हैं, इसी का एक रीजन ये है कि हमें सुधरना है। इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीना है, अल्लाह और उसके नबी के लिए जीना है। कितना वक्त है? अच्छा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जीना है, अल्लाह और उसके नबी के लिए जीना है कि नहीं? बता थोड़ा सा। नबी के लिए जीना है ना, क्योंकि यहाँ जो हमें खाना मिलता है ना नबी के वास्ते से, पीना मिलता है नबी के वास्ते। हदीस पाक बता रही है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह देने वाला और मैं बांटने वाला। जो खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सारा आराम सब नबी के जरिए से हमें मिलता है। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, आका दाना है दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। तो सारी चीजें नबी के जरिए से मिली, तो हम इस दुनिया में नबी के लिए जिएंगे। नबी का जो फरमान होगा उसी पर अमल करेंगे। उस पर अमल करने के लिए ये जमात बनाने की जरूरत पड़ी। आप गौर करें, बस मुख्तसर में हमारे छोटे छोटे बच्चे जिसके हाथों में नूरानी कायदा होना चाहिए था, जिसके हाथों में अम्मा पारा कुरान की किताबें होनी चाहिए थी, आज उसके माँ बाप उसके हाथों में 50-60 हजार का मोबाइल थमा देते हैं और धड़ल्ले से ये जुआ पे जुआ खेल रहे हैं। अरे कहते तो इंटर पूर्ति करता, टाइम पास करता है, कोई जुआ नहीं है। मैं कुछ देर के लिए मान लिया कि ये जुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जुआ
का एक रास्ता है। आज अगर इस बुराई से आपने नहीं रोका ना, कल बहुत बड़ा जुआ चोर बनेगा आपको बेटा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। घर के बर्तनों को वो बेचेगा, परेशान हो जाएंगे। घर के प्रॉपर्टी को वो बेचेगा। ये नशा इतना खराब है, एक दिन ऐसा भी आएगा अपने माँ और बहन की इज्जत को वो बेचेगा। और बेच रहा तो राजपुर में ये माहौल चल रहा है। शहर जुए में सारी चीजें हार रहा है, बीवी अपनी इज्जत को बेच करके अपने घर को चला रही है। कहाँ हो मुसलमान तुम? तुम्हारी गैरत कहाँ गई? क्या अब भी सिर्फ मिलाद सुन करके दुआ करके भाग जाओगे? हाँ, बड़ा मजे की तकरीर किया, मौलाना शाहादत आया था, बड़ी अच्छी तकरीर किया, हिला दिया महफिल को। ऐसी तारीफ हमें नहीं चाहिए, ऐसी प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। कम से कम आज अगर तकरीर सुन रहे हो अपने दिल में उतारो, क्योंकि आज के तकरीर में कोई नजराने की लालच नहीं है। खाली अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए जब मैं पैगाम लाया हूं, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप इसमें लब्बैक कहेंगे। ये जमात बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? बुराई तो आप समझ रहे हैं, बुराई खाली बुराई है। शराब, इसको बंद करना मकसद है। जुआ, इनको बंद करना मकसद है, क्योंकि सबसे बुराई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे मस्जिद आपने बनाया ना, बस आखिर बात, मस्जिद आपने बनाया, क्यों बनाया बताए? यहाँ मेहदी नगर के इंसान जवाब देंगे, क्योंकि मेहदी नगर की मस्जिद के बारे में मैं पूछ रहा हूं। नमाज पढ़ने के लिए, और कोई नहीं बोल रहे, सिर्फ वही नमाज पढ़ेंगे इसीलिए। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। आपके मोहल्ले में कितने घर हैं? 100 घर है। अब 100 घर से मस्जिद क्या सिर्फ एक घर के लिए ना, पूरे 100 घर के लिए? 100 घर के घर से तनख्वाह जाती है कि नहीं? 100 घर से पाली का भी मामला होगा, सब कुछ है ना। तो फिर 100 घर से एक एक नमाजी क्यों मस्जिद तक नहीं जाता? अरे आप उस वक्त कहेंगे ये हमारी मस्जिद है जब आपके घर से एक भी इंसान नमाज पढ़ने को जाएगा। 100 घर का नमाजी, अगर एक एक नमाजी, पूरा मस्जिद फुल। अब सुने, मस्जिद की खूबसूरती वो नहीं कि आपने मीनार खूबसूरत बना दिया, टाइल्स लगा दिया, पंखा लगा दिया, दारुण लगछे, हेवी लगछे, खूबसूरत नहीं है। आका फरमाते हैं वही मस्जिद खूबसूरत है जहां मुसल्ली खचाखच भरा हो, जहां मुसल्ली भरा हो। तो अब मैं आप हजरात के दयारे मोहब्बत में जरूरी समझता हूं कि इस मोहल्ले को हैंडल करने वाले कुछ तो माथा होंगे ना। हाफिज साहब, आप नाम बताएं। मौजूद है मौजूद। जब इस मोहल्ले को हैंडल करने वाले यहां मौजूद है, तो मैं उन लोगों से एक विनती करूंगा कि आप जो 10 बनाए हैं, मोहल्ला में 10 क्यों बनाया जाता है? 10 नहीं है, अराकीन मस्जिद कमेटी है। कमेटी है ना, क्यों बनाते हैं कमेटी? मोहल्ले में जब कोई मामला होता है, ये लोग फैसला के लिए कहाँ जाते हैं? आप लोगों के पास ही तो जाते हैं कि फैसला कर दो। तो ये कमेटियां बनती है ना कि सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए, मोहल्ले के अंदर खराबी होगा उसको दूर करने के लिए। यही ना मकसद है। जब यही मकसद है तो मैं कमेटियों से इल्तिजा करूंगा कि आप एक कानून बनाएं और उस कानून में हम साथ देंगे आपका। ये नौजवान लेकर हम आएंगे। अगर आपको कोई इनकार करता है तो हम खड़े होंगे उस इंसान के पास। आप कानून बनाए कि हमारी मस्जिद को आबाद करना है, हर घर से जिस तरीके से 100 रुपया तुम मस्जिद को इमाम के लिए देते हो ना, उसी तरीके से एक मुसल्ली कम से कम मस्जिद में आना है। ये आपका कानून होना चाहिए। दूसरा कानून, आप अपने मोहल्ले को ठीक रखने के लिए ये कानून लगाए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं, अगर मोबाइल हुआ तो अगर वो उसमें फ्री फायर खेलते हुए पकड़ा गया, इतना फाइन होगा, देना होगा। अगर नहीं देता, हमें पुकारे, हम सारी जमात को लेके आएंगे। बुराई ऐसे बंद होगी, ऐसे बंद होगी। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कितने घर बर्बाद हुए। आज का एक रिपोर्ट मैं बता रहा हूं,
एक बच्चा है 6 से 7 साल का, कौन दिखा रहा था ना वीडियो, आप दिखा रहे थे, 6 से 7 साल का फ्री फायर के चक्कर में अपनी मां का मर्डर कर दिया। आप कहां है? मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद 3 दिन तक लाशों को घर के अंदर घुसा के रख दिया। ऑनलाइन सारी चीजों को मंगाता है, खाता है। बच्चा कहां गया आपका? आज आपके घर में भी वैसा आएगा। इसीलिए मैं कमेटियों से विनती करूंगा कि अगर आप डरते हैं ना, तो हमें बीच में बिठा के रखे, हमारे नौजवानों को बीच में बिठा के रखे, करे काम। मैं हर हाल में आपके दयारे मोहब्बत में आने के लिए तैयार हूं। प्यार से समझाऊंगा, मारूंगा नहीं, समझाऊंगा, लेकिन इस काम को लागू करें। आप मोहल्ले को सुधारना है। आप शादी ब्याह के मौके पर जरूर आप खुशियां मनाए, लेकिन वहां पर एक कानून ये भी करें। इससे पहले भी एक मर्तबा बता के गए थे, वो कमेटी हमारी टूट गई, इसीलिए हमने नौजवानों को लेकर इस कमेटी को बनाया है। इसको हम टूटने नहीं देंगे, इसमें भी कानून करें। आप अपने घरों में बजा रहे हैं बाजा, 10 बजे तक बजाएं, और बाजे में सिर्फ नात बजाएं, कव्वाली बजाएं, कोई दूसरा गाना ऐसा ना बजाएं जिससे ईमान बर्बाद हो, और साउंड इतना रखें कि मुसलमान को तकलीफ ना हो, बस आप बजाएं। लेकिन जहां कोई गाना बजाता हुआ पकड़ा गया, फाइन करें आप, 200 रुपया फाइन। देखिए 2 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। ये बातें हैं, इन सारी बातों के तहत हम आपके दयार में आए हैं। सारा मोहल्ला हमने किया, सारे मोहल्ले के लोगों ने हमें साथ दिया है। हमारी माँ और बहनों की इज्जत को भी बचाना है, हमारे घरों की बरकतें भी जो खत्म हो गई उसको भी वापस बुलाना है, हमारी मस्जिदों को भी आबाद करना है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। इसकी वजह से अब मैं आप हजरात से पूछना चाहूंगा, क्या इस जमात में आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? खुलेआम जो जुआ चल रहा है ना लॉटरी के नाम पर, इसके खिलाफ भी है। अच्छा लगे तो जवाब दे, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप साइड हो सकते हैं। हम इन तमाम बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपकी दयार में सिर्फ बात पहुंचाने के लिए आए हैं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे, इस जमात का साथ देंगे? इंशाअल्लाह। अरे भाई बोलिए, अगर साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह बोलिए। हाथ उठाकर बोले। इस मामले में किसी को मार धार नहीं करना है। जब आप बुराई देखें ना, तो आप फोन करें हमें, हम वहां तक पहुंचेंगे, अपने बच्चों को साथ लेकर के पहुंचेंगे, और वहां पर पैगाम देंगे, 2-3 मरतबा पैगाम देंगे। इंशाअल्लाह बुराई खत्म होगा, बुराई का खात्मा होगा। और इसी बुराई के तहत, हाँ, और एक ताजा रिपोर्ट है, माने एकदम जुए के अड्डे पर डायरेक्ट लिए। देखो वहां पर हमारा वो सोहेल भाई भी था, खोकन भी था, और भी बहुत सारे लड़के थे सारे। जब मैं वहां गया क्लब में, वहां जो लरीबन का पहाड़ में क्लब है ना, उधर वो क्लब में गया तो लड़के ही लोग कहने लगे कि जहां जुआ हो रहा वहीं करे, कर दिया वहीं पर। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जुआ बंद हुआ है और आज तक बंद है। आपको अपनी बातें पहुंचानी होगी, आगे बढ़ना होगा। देखिएगा इंशाअल्लाह बहुत अच्छी शक्ल इस्लामपुर इख्तियार करेगा और अच्छी बातें फैलेगी। हम इस जमात को कुछ नौजवानों को लेकर के शुरू तो किए हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये इसका अंजाम जो है ना आखिर बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आप लब्बैक कहें। और इसके अलावा और एक बात यह है कि बहुत सारे गरीब हैं जो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो पैसे का, खर्चे का, या कोई बीमार है इलाज नहीं कर पाते हैं, तो इस कमेटी का सबसे दूसरा आखिरी रुख ये भी है कि उस इंसान का होकर के उसकी तकलीफ दूर करने में साथ निभाएंगे। जरूर हम लोग मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। हम लोगों ने तो चंदा का मसला नहीं रखा कि आपसे चंदा चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम खुद अपने से 100-200 रुपया दे करके एक चंदा देकर उसकी मदद कर सकें, या फिर ये ऐलान हो जाएगा इस कमेटी में अगर कोई हिस्सा लेना चाहते हैं दे, ताकि गरीब का बीमारी में इस हर काम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा इस मोहल्ले से
कम से कम 2 4 10 तक लड़के इस कमेटी के ग्रुप में जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद जब जब खबरें हों, और खबरों का ये आखिरी महल्ला, इसके बाद नईमी महल्ला है, उसके बाद प्रोग्राम का दूसरा रुख इख्तियार होगा, तरीका दूसरा होगा, वो ग्रुप में बयान किया जाएगा। तो मैं आप हजरात को गुजारिश करूंगा इस ग्रुप में आप हजरात जरूर शिरकत करें, और आप अच्छे मशवरा से भी नवाजेंगे मौलाना साहब हमारे मोहल्ले में ये काम करना चाहिए, आप आकर के एक मर्तबा कहें तो मैं आपके लिए कभी भी आने के लिए तैयार हूँ। ये फ्री अल्लाह के लिए, इंशाअल्लाह सारे नौजवान भी आने के लिए तैयार है। बस यही गुजारिश करते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अल्लाह हमें और हम तमाम मेहदी नगर के नौजवानों को, बच्चों को, हमारी माँ और बहनों को और बुजुर्गों को सुधरे हुए रास्ते पर चलने की, अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलकर नबी की रजा और खुदा की रजा हासिल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। आइए उस नबी की बारगाह में खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ें। पढ़ो सलाम पढ़ो। हम कट गए। कौन था?